Hello dear students, welcome back to the digital platform of Nalanda Vidyalaya. Myself Patel Pritesh and I welcome all of you to the online learning and teaching platform of Nalanda Vidyalaya. This is our first video after Diwali break also. So I hope you all have enjoyed Diwali and you all are fit, fine and healthy and remain healthy also. Now dear students, it is our last chapter for the standard 6 SS social and political life means civics parts, last chapter for this year only or for this whole term also. We have already completed chapter number 20, 21, 22 and 23 also. Now this is the time for chapter number 24 with the title Local Self-Government, in which rural and urban administration. We will learn about local self-government at two levels, urban level and rural level. Okay, it's both administration. But what we have learned in the previous chapter, we have learned everything about the democratic government. Okay, especially about the democracy. Whatever that, what happened in our country and whatever are the, we can say, provisions for this kind of government, are everything in detail in that chapter only. Aim of the democratic government, why we need a democratic government, what are the benefits of this democratic government. So we have seen everything in the previous chapter. So out of these three types of the government means monarchy, dictatorship and democracy, we have seen and we have learned with the experience that democracy is the most powerful and we can say most common used source of, we can say, type of government all over the world. Still at some places monarchy and dictatorship governments are working in the as a function also, but in many countries of the world right now democracy is functioning as the main power of the governor. So now, as the previous chapter we have completed the democratic government, now in our country at the three stage the government works. Number 1 at the central level, number 2 at the state level and number 3 at the local level. We have seen at the central level and state level its election process. It's, we can say, at the central level it is called Lok Sabha and at state level it is called Vidhan Sabha. Remember? Now it is time for the third part and we can say third type is local self-government. सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोकल की हमारे आजू बाजू की, हमारे जहां हम रहते हैं उसके आजू बाजू की जो गवर्नमेंट होती है ना उसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. डिड वी नीड दिस गवर्नमेंट? यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो कनेक्ट करता है हमारे, हम कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल से, मतलब कि हम सबसे रियलिटी से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक. सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हम कहते हैं कि नए नए कानून बनाते हैं, इम्पोज करते हैं, वो सब लास्ट तक जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. और जो लास्ट की जो परेशानी से, प्रॉब्लम से, जो नेसेसिटी है लोगों की, वो लास्ट मतलब कि हायर टॉप पर जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. So in our country these three steps are there, or I can say that these three are the centers of the government. First of all, at the higher level, central government runs the whole country, controls the whole country. Number 2, state level controls the whole state, only state, that particular state. And third one is local self government that controls the localities. लोकल जो आजू बाजू के विलेजेस, टाउन्स और स्मॉल और बिग सिटीज़ हैं उनके अंदर की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे कंट्रोल होती है, मैनेज होती है. सो वी हैव टू ऑल्सो लर्न लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑल्सो. गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, स्पेशली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया. नाउ व्हाट इज दिस लोकल मीन्स? Local government, or we can say local administration, is mainly of two types. If we are talking about in India, I am talking about India. हम इस यूनिट में जो बात कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो इंडिया की बात कर रहे हैं. हम दूसरी किसी कंट्री का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, दूसरी किसी कंट्री का हम यहाँ पे
हम कहेंगे कि एक्सपोज भी नहीं करे कि कोई उसकी गवर्नमेंट की क्या सिस्टम है क्या नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट आवर कंट्री इंडिया ओनली. सो talking about local self government, so it is divided in two main, okay, we can say sections. जो हम दो सेक्शन भी हम उसे बांट दिया है पहले से. नंबर 1 इज रूरल. सो नंबर 1 इज रूरल, नंबर 2 इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. सो रूरल एंड अर्बन इन दोनों से ही हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूरा का पूरा बना हुआ है. ओके, वी विल सी ओके एवरीथिंग अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल. उसके अंदर कैसी फंक्शनिंग होती है, कौन सी जो हम कह सकते हैं कि मेंबर से वहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, कहाँ से इलेक्ट होते हैं, क्या करते हैं वो सब. ओके, बट द मेन थिंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द की थिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू एड्रेस टू सॉल्व द मेन ग्रास रूट प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. ओके, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, जो उनके ग्रास रूट के बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, उनके लिए वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अप्रोच होती है, गवर्नमेंट वहाँ पे ट्राई करती है. और उस गवर्नमेंट के जो हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं ना, वो लोकल ही होते हैं, मतलब उनके ही होते हैं, उन गांव के, विलेजेस के, टाउन्स के, सिटीज़ के ही होते हैं. ओके, बाहर से कोई नहीं आता है. ओके, सो दिस इज द मोस्ट की फीचर और वी कैन से की फैक्टर ऑफ दिस काइंड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज दैट द पीपल आर अवेयर ऑफ द इलेक्टेड पीपल. ओके, आर अवेयर ऑफ द स्मॉल टू स्मॉल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल दी पीपल्स. ओके, ग्रास रूट लेवल का वहाँ पे काम होता है. ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है कि सबसे नीचे तक. ओके, जो लेबर होता है, लेबर की क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या दिक्कत होती है, फार्मर्स हैं. ओके, हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयड जो होते हैं वो सब के बारे में वहाँ पे हम सोचते हैं कि जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सॉल्व होने की ट्राई वहाँ पे होती है. दैट कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. बिफोर गोइंग ओके फॉरवर्ड और इन द टेक्स्ट बुक, let's see some words that we have to understand their meanings. Okay, so words to know, in which the first one is ruler. As I told you first, the ruler administration. Here the ruler means connected to small and big villages. जो स्मॉल और बिग विलेजेस कनेक्टेड है उसे हम कनेक्टेड जो होते हैं ना, उसकी सारी जो परेशानी हो सब उसे रूलर कहते हैं, रूलर एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ अर्बन मीन्स कनेक्टेड टू टाउन एंड सिटीज. ओके, टाउन्स एंड सिटीज को जो कनेक्टेड होते हैं ना, उन्हें हम अर्बन कहते हैं. अर्बन, रूरल एंड अर्बन. देन एडमिनिस्ट्रेशन, अनदर वर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन, द कंट्रोल और द एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग. कंट्रोल करना या तो उसके ऊपर एक्ट करना कि उन सबको क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं, वैसा. फॉर एग्जाम्पल अ सिस्टम, पूरे एक सिस्टम को कंट्रोल करना, पूरे एक सिस्टम को मैनेज करना, उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, दैट इज द वर्क ऑफ देयर मेन. नाउ नेक्स्ट वन इज पंचायती राज. पंचायती राज मीन्स द 3 टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट की पंचायती राज वो रूरल एरिया की, प्लीज रिमेंबर, रूरल एरिया की वो 3 टायर सिस्टम है. एट द विलेज लेवल विलेज पंचायत, एट द ब्लॉक लेवल पंचायत और ब्लॉक समिति, एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद. ओके, तो ये जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है वो हम कह सकते हैं कि हमारी रूरल एरियाज के लिए स्पेशली बनाई गई है. 3 टायर. ओके, 3 टायर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम. वी हैव टू रिमेंबर दिस वन. ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 की फैक्टर्स है हमारे, उसमें है एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और एक है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की ये 3 टायर सिस्टम हमें याद रखनी है. सेम ऑल्सो देयर इज 3 टायर सिस्टम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, वी विल सी इन दिस चैप्टर. ग्राम पंचायत, अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा भी आपको समझना पड़ेगा. ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत मतलब कि 5 मेंबर्स की इलेक्ट हुई, मतलब कि चूज की गई हुई ऐसी एक, हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स, ऐसी एक टीम. लेकिन कौन उसे सिलेक्ट करता है या इलेक्ट करता है? तो ग्राम सभा. तो ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा मतलब विलेज की सारे जो एल्डर्स पर्सन हैं वहाँ पे उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे सभा को कहते हैं ग्राम सभा. ओके, इट्स वेरी इजी. देन नेक्स्ट वन इज पटवारी. पटवारी मीन्स अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द रूरल एरिया, जिसे हम हमारे गुजराती में तलाटी भी कहते हैं. ओके, तलाटी, पटवारी, तलाटी. ओके, तहसीलदार, अलग अलग उसके नेम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो पोस्ट होते हैं ना वो भी हम कहेंगे कि वर्किंग अलग अलग हो जाते हैं. जो पटवारी इज दी दैट नेम ऑफ दैट, वी कैन से सिंपल जो तलाटी होते हैं या फिर जिसे हम ग्राम सेवक भी कहते हैं. हाँ, दोनों में डिफरेंस है. ओके, प्लीज रिमेंबर ग्राम सेवक एंड वी कैन से तलाटी ऑल्सो. Both are the official, government official. Number next is tiling.
सो प्रिपेयरिंग एंड कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। आपने अगर फार्म देखा होगा तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि स्क्वायर या हम कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप में वो जो हमारा फार्म है ना उसे डिवाइड किया गया है, तो उसे कहते हैं टाइलिंग। मतलब किसी लैंड को उस हिसाब से, मतलब उसी स्क्वायर के या रेक्टेंगुलर हिसाब से उसे पूरा फ्लैट करना, फिर उसके ऊपर सारी जो हम कह सकते हैं ना कि लैंड कल्टिवेटिंग की प्रोसेस होती है। सो दैट इज मीन टाइलिंग। नेक्स्ट वन इज वार्ड। वार्ड मीन्स डिवीजन ऑफ एन एरिया टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और पंच फॉर पंचायत। डिवीजन ऑफ अ सिटी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। दो मीनिंग है। अगर किसी हम कहेंगे कि टाउन या छोटे विलेज का वहाँ पे अगर डिवीज़न किया है किसकी वजह से कि पंच के लिए, पंच को रिप्रेजेंट करने के लिए जो पंचायत बनाते हैं, जो 5 पंच होते हैं वो आगे जाके पंचायत बनाते हैं। ओके, ग्राम पंचायत जो हमने आगे वर्ड सुना वही। ओके, तो उसमें 5 पंचेस होते हैं। तो पंचेस यहाँ पे जो लिखा है ना पंचेस, मतलब कि 1 मीन्स ऐसे अलग अलग जो सारे हम कहेंगे कि उनके लिए पूरा रिजर्वेशन भी होता है। शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन्स के लिए, उन सब के लिए रिजर्वेशन होता है कि पंच में कौन कौन होंगे। वो पंचायत आगे जाके हम कहेंगे कि ग्राम पंचायत बनाते हैं। और अगर सिटी की बात करें तो डिवीजन ऑफ अ सिटी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। सिटी का एक ऐसा भाग जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं उनको हम वार्ड कहते हैं। वार्ड मतलब एक इलेक्शन प्रोसेस के लिए उन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं। पूरे सिटी को वार्ड में हम डिवाइड कर लेते हैं। वार्ड के हिसाब से हम उस मेंबर को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई मेंबर उस वार्ड से हम कह सकते हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। सो सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड ऑल्सो इन वार्ड्स। नेक्स्ट वन इज मेयर। मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो मेयर है ना वो हेड होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो सबसे पहला हम जब बात करेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका हेड होता है मेयर। मतलब वो पूरे एरिया का हम कह सकते हैं कि हेड होता है। ओके, मेयर, प्लीज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रीवेनेंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवेनेंस? मीन्स समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर, एंड दैट यू वॉन्ट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट। अब उसी के बारे में आप कंप्लेन या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेनेंस। ओके, ग्रीवेनेंस मतलब कि आपके किसी के ऊपर, कि आपके ऊपर जो कोई भी नियम हुआ है या आपके ऊपर जो भी कुछ कानून बना है वो अनफेयर है, आप उसके बारे में कंप्लेन या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, यानी विरोध। प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि विरोध करना चाहते हैं, कंप्लेन का मतलब कि आप फरियाद करना चाहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेनेंस। So dear students, this is our words, okay, key words of this our chapter that we have to remember: rural urban administration, panchayati raj, gram panchayat, patwari, tiling, ward, mayor and governance. So let's start the chapter with the, we can say, the first half of this content part. Okay, let me tell you also, this chapter will be in 3 parts. First part that we will continue for the rural administration. In second part we will try to cover all the points and we will try to learn everything about the urban administration. And in the third part we will try to understand the an explanation of the textual exercises with the question answers and MCQs and other exercises. Okay, so starting with the first one, the big idea means what will come in this chapter. Okay, local self-government. What is the meaning of local self-government? The term, its meaning. Then Panchayati Raj system of our rural administration. Organization of a Gram Panchayat. Rural administration. Okay. Inheritance law, Hindu Succession Amendment Act 2005. Functions of municipal corporations. Addressing citizens' grievance. Okay, grievance मतलब उनके जो दुख होते हैं, जो प्रोटेस्ट होते हैं, वो एड्रेस करना, मतलब कि वहाँ पे ध्यान देना। Now, something that we have to knew everything about that different kinds of terms. Now here we have another one fact of that one. Aruna Asaf Ali was the first elected female mayor of Delhi, 1958. She was a freedom fighter, a politician and a teacher. She is remembered for hoisting the national flag at the Gwalior Tank Maidan in Bombay, now Mumbai, ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये पॉलिटिशियन थी, ओके, फ्रीडम फाइटर भी थी। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट में वहाँ पे उन्होंने सी इज रिमेंबर फॉर द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। उन्होंने अपना नेशनल, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वहाँ पे होस्ट किया था। ओके, ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे में जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तब। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन, जब हमारा इंडिया फ्री हो गया
ब्रिटिश गवर्नमेंट से या ब्रिटिश रूल से, तब इलेक्शन में मैंने पहले भी कहा था कि जो रिजर्वेशन होते हैं कि मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स का होता है, तो उसमें दिल्ली में से ये फर्स्ट मेयर थी उस वक्त की। ओके, अरुणा असफ अली वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड फीमेल मेयर ऑफ दिल्ली इन 1958. सो दैट इज यू कैन से वन ऑफ द की फैक्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, एट द 1958 ओके ईयर्स एंड ईयर्स एगो, वहाँ तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी जो वुमन थी वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेती थी। ओके, वो जीतती भी थी, और हम कह सकते हैं कि जो उनका इम्पोर्टेंट रोल भी वहाँ पे प्ले होता था वुमेन्स का, स्पेशली इन दी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर मीन्स रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 3 टायर पंचायती राज। पंचायती राज हमने उसे नाम दिया क्योंकि पंचायत जो हम बनाते हैं ग्राम पंचायत, ओके, उसके लिए यहाँ पे उसका नाम रखा है तो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। ये पहले से चला आ रहा है, ओके, नॉट फ्रॉम नाउ। तो टायर 1 इज जिला परिषद, इट्स एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। टायर 2 ब्लॉक और पंचायत समिति, जिसे हम तालुका कहते हैं। ओके, तालुका या तहसील दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, जिसे ब्लॉक लेवल कहते हैं। टायर 3 इज अ ग्राम पंचायत समिति एट विलेज लेवल। नाउ टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट, हमें थोड़ा इसके बाहर निकलना पड़ेगा कि छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस, जिसे हम पराभी कहते हैं। ओके, छोटे छोटे विलेजेस, उससे भी बड़े विलेजेस, आगे जाके उन ग्रुप्स ऑफ विलेजेस बनाते हैं एक तालुका, मतलब इसे तहसील कहते हैं। ऐसे अलग अलग तालुकास, तहसील्स ग्रुप होके बनाते हैं एक जिला, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं इंग्लिश में, गुजराती में उसे जिला कहते हैं। ओके, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सारे ग्रुप में कंबाइन होके एक स्टेट बनाते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट ऐसे बॉर्डर के साथ एक दूसरे के साथ हम कहेंगे कि जो होते हैं ज्वाइन ही होते पहले से, हमने उसे जिला या स्टेट बनाया होता है अपने हिसाब से, तो वो सारे जो जिलास हैं वो स्टेट बनाते हैं, वो सारे जो स्टेट्स हैं वो आगे जाके कंट्री बनाते हैं। क्लियर? अब कंट्री लेवल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो, स्टेट लेवल की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो, अब थर्ड आती है हमारी कि जो जिला, तालुका और विलेजेस, इन 3 की जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, दैट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट 2 लेवल, रूरल लेवल एंड अर्बन लेवल। ये जो सारे 3 लेवल्स थे, 3 टायर सिस्टम, वो थी रूरल लेवल की पंचायती राज सिस्टम। नाउ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम नगर पालिका कहते हैं, वहाँ पे पंचायत कहते हैं तो यहाँ पे से नगर पालिका कहते हैं, और आगे जाके जो बहुत बड़ी सिटी है उसे हम महानगर पालिका भी कहते हैं। ओके, बट दे आर ओनली कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। So, urban local self-government Nagarpalikas, in which first tier is municipal corporation, big cities, over 10 lakh populations. Okay, big cities, Mumbai, Ahmedabad. Okay, examples are, okay, so these are the big cities of that one. Number 2 is municipalities or municipal councils. Municipalities या फिर उसे municipal councils कहते हैं, medium and small towns, medium और small towns के लिए। थर्ड वन इज सिटी काउंसिल और नगर पंचायत, सिटी काउंसिल या तो फिर नगर पंचायत कहते हैं, फॉर सेमी अर्बन लोकेलिटीज। जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, उसमें सेमी अर्बन लोकेलिटीज जो होते हैं उनके बारे में, जो सिटीज होते हैं, छोटे छोटे सिटीज होते हैं। ओके, फॉर देम सिटी काउंसिल और नगर पंचायत। सो हियर आवर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट इंडिया, और वी कैन से इन इंडिया, बेसिकली डिवाइडेड इन 2 big parts. One is rural administration and second is urban administration. In this one, in this part of this chapter, we will learn rural administration. Starting with this one, what is the local self-government first is, the government in India functions at the 3 levels, central level, state level and local level. The local self-government is of great importance to the local people as they can identify and solve their problems more easily. Yes, as I told you before. As local level democratic government, the local self-government functions at the grassroots levels. जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो ग्रास रूट लेवल से काम करती है, मतलब कि सबसे नीचे, सबसे हम कह सकते हैं कि नीचे से नीचे जो लोग होते हैं ना, उनकी प्रॉब्लम्स वो पहले एड्रेस होती हैं, आइडेंटिफाई होती है, फिर उन्हें सॉल्व करने की ट्राई होती है इस गवर्नमेंट में। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइज एट द बेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल।
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड देयरफॉर फंक्शन एट द ग्रास रूट लेवल, इसलिए वो ग्रास रूट लेवल से भी फंक्शन होता है, मतलब जहाँ भी प्रॉब्लम होता है ना वहाँ उस जगह पे सॉल्यूशन होता है। ओके, इट इज़ फॉर्म टू लुक इनटू लोकल प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल ऑफ अ विलेज, टाउन और सिटी। जो ये लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं पीपल के, ओके, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं बेसिक एमिनिटीज़, मतलब कि जो हम कह सकते हैं ना कि सुख सुविधाएं जो होती है ना, जो हम कहते हैं ना एमिनिटीज़, वो वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। ओके, उनके विलेजेस, उनके टाउन्स या सिटी के लोगों को। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शंस एट 2 levels as I discussed earlier. Number 1 rural level and number 2 urban level. At the rural level it functions under the पंचायती राज सिस्टम। रूरल लेवल में वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर फंक्शन होती है। और 3-tier सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ जिला परिषद, ब्लॉक और पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो 3-tier में काम होता है, 3 सिस्टम, मतलब कि वहाँ पे पंचायती राज उसे कहते हैं, वो हैं जिला परिषद, ब्लॉक और पंचायत समिति, और 3rd one ग्राम पंचायत। नाउ लाइक द रूरल लेवल, एट द अर्बन लेवल द मेन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज आर, उनके भी 3-tier लेवल की हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट, नंबर 2 द म्यूनिसिपलिटीज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स, एंड नंबर 3 नगर पंचायत। वहाँ पे भी 3 लेवल पे भी काम होता है, बट दे आर नॉट, वी कैन से, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसमें सिर्फ हम कहेंगे कि उसके एरिया और उसकी जो हम पॉपुलेशन है उस हिसाब से ही उनका थोड़ा वर्किंग और फंक्शनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। बट लाइक इन रूरल एरिया, ओके, इट इज़ वेरी डिफरेंट। ओके, फंक्शनिंग फ्रॉम दैट वी कैन से 3-tier सिस्टम मीन्स जिला परिषद, ब्लॉक और तालुका और वी कैन से पंचायत समिति, एंड एट दी विलेज मीन्स ग्राम पंचायत लेवल। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डू वी नीड दिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? क्या सिर्फ सेंट्रल या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नहीं चल सकती? ओके, वो क्या विलेजेस और टाउन्स और सिटीज़ का गवर्निंग, हैंडलिंग, मैनेजिंग ये सब नहीं कर सकते? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो, because there are many villages, many towns and many small and big cities are there in our country. सबकी जगह पे हमें गवर्नमेंट चाहिए, वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके, एट एवरी लेवल। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। लोकल पीपल न्यू देयर प्रॉब्लम्स वेल and hence can solve them better by taking part in a local governance themselves. जो लोकल पीपल होते हैं, जो आजू बाजू के होते हैं या फिर उनके खुद के भी प्रॉब्लम होते हैं, उन्हें पता होता है कि फार्मिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, या फिर हम कहेंगे कि डेली लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स के, पानी के, हम कहेंगे कैनल्स के, ओके, वाटर हार्वेस्ट के, कितने भी प्रॉब्लम्स है वो क्या है वो उन्हें पता होता है। इसलिए वो वही लोकल पीपल उसी लोकल गवर्नमेंट में पार्ट लेते हैं, ओके, और वहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्शन में वो लड़के आगे भी आते हैं, जिससे उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहती है। सेकंड वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस जनरेट्स अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्व्स देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वो पार्ट लेने के बाद अगर वो जीतते भी है, इलेक्ट भी होते हैं, तो वो आगे जाके जो डिसीजन मेक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस डिसीजन मेकिंग, उसके ऊपर व्हाट शुड बी दैट काइंड ऑफ डिसीजन। सो यस, दिस लोकल पीपल्स कैन, ओके, इलेक्ट, ओके, पार्टिसिपेट करेंगे तो इलेक्ट भी होंगे। इलेक्ट होने के बाद वो डिसीजन लेंगे कि जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें सॉल्व करने के क्या क्या डिसीजन होने चाहिए, सो दे कैन मेक दैट काइंड ऑफ डिसीजन। थर्ड वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू एक्वायर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो सेल्फ गवर्नमेंट में जो वो रिप्रेजेंट करके जो इलेक्ट होके आते हैं ना, उन्हें वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो एक्वायर करे सारी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस किस बात की, एडमिनिस्ट्रेशन बाबत की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड जितना छोटा है उसकी फंक्शनिंग, उसकी मीनिंग उतना ही बड़ा है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि पूरा हैंडल करना, पूरा मैनेज करना किसी एक सिस्टम को। ओके, अब आप बात कर रहे हैं अगर जिला की, तो जिले की एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन की, सिटी की या विलेज की, तो उन हिसाब से उन सबकी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सीखनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सो व्हाट आर द रियल फंक्शनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट lightens the burden of the central and state governments. Very true.
इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, वो लोगों का मतलब लोकल पीपल का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लिंक करता है। नंबर 2, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बर्डन्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे या हम कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट पे, उनका बर्डन को वो हल्का करता है, लाइटन करता है, लाइटन्स द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एज आई डिस्कस बिफोर ऑल्सो, it is not possible for a central level government or a state level government to solve every problem of all the cities, villages and small villages also। छोटे छोटे हम कहेंगे कि जो विलेजेस होती है वहाँ की उन लोगों की प्रॉब्लम जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो नहीं सॉल्व कर सकती, क्योंकि उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट का देखना पड़ता है। प्लीज़ रिमेंबर, ओके, बोलने में बहुत ही ईजी है कि यस स्टेट इज दैट, स्टेट गवर्नमेंट इज द functioning of, or we can say the working body of all the kinds of things, problems happening in the state। स्टेट बहुत बड़ा होता है, अगर वो छोटा भी हो या भी बड़ा भी हो, लेकिन स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, उससे भी बड़ा होता है हम कहते हैं कि सेंट्रल लेवल। ओके, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थर्ड सिस्टम, दैट इज़ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर वो नहीं होती या नहीं होती आगे जाके भी, तो सब कुछ हमारा जो होता है वो जो स्टेट लेवल का होता है, जो हम कहेंगे विलेजेस लेवल का, टाउन्स या सिटीज़ लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट हैपन इन आवर कंट्री। नाउ दैट टॉकिंग अबाउट पंचायती राज सिस्टम, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम, वो क्या है? द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज अ 3-tier सिस्टम वेर इन द बेसिक यूनिट इज द ग्राम पंचायत। सबसे बेसिक है वो ग्राम पंचायत है, लेकिन ये है वो किस सेक्शन का है? तो हम कहेंगे कि ये पंचायती राज सिस्टम है वो हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है। ओके, प्लीज रिमेंबर, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो दिस 3-tier सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, इज द, वी कैन से, दी फीचर्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। दस लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन रूरल एरियाज वर्क एट 3 levels। जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं रूरल एरियाज की, वो 3 लेवल पे काम होते हैं या करते हैं। नंबर 1, एट द लोएस्ट लेवल, विलेज लेवल, इट इज कॉल्ड द ग्राम पंचायत। एट द मिडल लेवल और ब्लॉक, और वी कैन से तालुका लेवल, इट इज द पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, जिसे तालुका समिति भी कहते हैं। एट द हाईएस्ट लेवल, और वी कैन से एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इज द जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट को हमने कहा कि जिला कहते हैं, तो दैट आर कॉल्ड जिला परिषद। सो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, एंड थर्ड वन इज जिला परिषद। The 3 institutions together look after local needs and solve the problems of the rural areas। जो लोकल लोगों की जो छोटे छोटे नीड्स जो होती है, ज़रूरतें होती है, डिमांड्स होती है, वो पहले सुनी जाती है, एड्रेस की जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है और लास्ट में सॉल्व की जाती है। लिटरली अ पंचायत इज अ कमिटी ऑफ 5 इलेक्टेड एल्डर्स और पंच, जिसे पंच कहते हैं, और हम एक से ज़्यादा पंच होते हैं उन्हें पंच कहते हैं। सो लिटरली अ पंचायत, जो पंचायत है ना, वो 5 इलेक्टेड एल्डर्स की हम कहते हैं कमिटी होती है। एल्डर मतलब कि जिनकी एज 18 ईयर्स के ऊपर है, उन्हें एल्डर कहते हैं। आपको पता है हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे एल्डर किसे कहते हैं। ओके, लिटरली अ पंचायत इज अ कमिटी ऑफ 5 इलेक्टेड एल्डर्स और पंच हु आर रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ विलेज। रिमेंबर, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ विलेज। In ancient India, a village used to have the council of 5 elected elders who looked after the affairs of the village and the villagers। पहले भी हमारे एशियंट इंडिया में जो विलेज में होते उसमें पंचायत ही होती थी, उसमें भी 5 एल्डर्स होते थे जो विलेज के ही मेंबर्स होते थे, और वही सारी विलेज की सारी प्रॉब्लम्स और सारी जो मुश्किल होती थी, जो नीड्स होती थी, वो सॉल्व करते थे। दिस पंचायत एक्टेड इम्पार्शली वाइल सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ये जो पंचायत होते हैं ना, वो किसी भी प्रकार की पार्शलिटी की बगैर सारे जो डिस्प्यूट्स होते थे, जो भेदभाव होते थे, मतभेद होते थे, वो सॉल्व करते थे। ओके, यस, गोइंग फॉरवर्ड, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स कम टू दैट पॉइंट, कनेक्ट टू द वर्ल्ड अराउंड। व्हाट इज दैट? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू एस्टैब्लिश ग्राम पंचायत्स and to give them sufficient power and authority to function properly। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट लेवल और हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को कहा गया है कि
ग्राम पंचायत को एस्टेब्लिश करना है अच्छे से, और उन्हें ऐसी पावर्स भी देनी है कि वो जो फंक्शन करें वो प्रॉपरली फंक्शन करें, मतलब उनके हाथ में कुछ पावर हो जिससे वो डिसीजन ले सके। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि प्रोविजंस दिए गए हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ओके, अ पंचायत इम्पार्ट्स टू द विलेजर्स देयर फर्स्ट लेसन्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पंचायत जो है वो सबसे पहला पार्ट पढ़ाता है कि जो सारे लोग हैं उन लोगों का हम कहेंगे कि एक साथ किसी भी पार्शलिटी के बिना उनका डेवलपमेंट करना, उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट की सबसे पहले जो बात होती है वहाँ से होती है। इनिशिएटिव, सेल्फ रिलायंस एंड पार्टिसिपेशन अमॉन्ग द विलेजर्स। इनिशिएटिव मतलब कि कुछ भी नया करना हो ना तो उन्हें इनिशिएटिव कहते हैं, कुछ नया करने के लिए, ओके, कुछ नया डिसीजन लेने के लिए। देन सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर हम कहेंगे ना कि खुद के ऊपर खड़े रहना। सेल्फ रिलायंस, भरोसा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पे सेल्फ रिलायंस है, मतलब खुद के ऊपर हम कह सकते हैं खड़े रहना। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सेंसेस आर क्रिएटेड इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्पेशली अबाउट रूरल एरियाज एंड पंचायत राज सिस्टम। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। ऑलमोस्ट ऑल बिग विलेजेस हैव अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। अब हम उसकी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में बात करेंगे कि सच में वो काम कैसे करते हैं ग्राम पंचायत। तो सारी जो विलेजेस होती है बड़ी बिग विलेजेस, ओके, उन सब में मोस्ट प्रोबेबली सभी विलेजेस में ग्राम पंचायत होती है, और अगर ग्राम पंचायत है तो उसका मतलब कि ग्राम सभा भी होती है। याद रखिए, ग्राम पंचायत है वो इलेक्ट होके आती है ग्राम सभा से ही। लेट्स सी व्हाट इज ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा, द ग्राम सभा इज द विलेज असेंबली कंप्रोमाइजिंग ऑल एडल्ट मैन एंड वीमेन इन द विलेज हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिसे हम एडल्ट कहते हैं, जिनकी 18 ईयर्स हो चुकी है, वो सारे एडल्ट हैं, वो सारे ग्राम सभा के हम मेंबर्स कह सकते हैं। जो वर्किंग मेंबर्स वहाँ होते हैं उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर, वो असेंबली है सबकी मिली हुई, कौन से, सारे एडल्ट्स की, मेन एंड वीमेन दोनों। द ग्राम सभा प्रिपेयर्स द विलेज बजट एंड ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। पंचायत की जो अकाउंट है उसकी ऑडिट बनाते हैं, बजट बनाते हैं। इट ऑल्सो कंसिडर द एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर्स डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द कमिंग ईयर्स। जो ग्राम पंचायत ने जो अपने बजट या हम कहेंगे कि जो प्लान बनाया, जो रिपोर्ट बनाया है पूरे साल का, उनके ऊपर हम वहाँ पे कह सकते हैं कि बातचीत होती है, डिबेट भी होती है। द ग्राम सभा सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अच्छे से वर्क कर रही है, वो कोई खराब काम नहीं करती, मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं काम करती, वो देखने का काम जो है वो सुपरविजन का काम कौन करती है, ग्राम सभा करती है। प्लीज रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट वन इज द ग्राम पंचायत। The Gram Sabha elects the members of the Gram Panchayat. Please remember, the Gram Sabha elects the member of the Gram Panchayat. अब आप कहेंगे कि सर जो ये 5 मेंबर्स की जो कमेटी है या जो पूरी टीम है उनमें हेड कौन होता है? यस, डेफिनेटली ग्राम पंचायत का हेड होता है और उसे हम सरपंच कहते हैं। आई थिंक यू हैव हर्ड दिस नेम, ओके, सरपंच। तो जो विलेज का जो सरपंच होता है ना वो हेड होता है, वो विलेज का तो हेड होता ही है, लेकिन वो ग्राम पंचायत जो कमेटी बनी ना उसका भी हेड होता है। सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स ऑफ द विलेज। ओके, विलेज के वुमेन मेंबर के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व होती है, और उससे पहले भी एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्वेशन होती है। अब आप थोड़े अगर बाहर जाएंगे तो ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब क्या है, तो जिसे हम कहते हैं कि जो कास्ट जो होती है या ट्राइब्स जो होती है ना, वो जो थोड़ी हम कह सकते हैं कि नीचे होते हैं, जो डेवलप नहीं होते ना, उन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। ओके, जो डेवलप नहीं हुई है, जो इकोनॉमिकली और जिनके पास हम कह सकते हैं लैंड भी नहीं है, उतने प्रॉपर्टी भी नहीं है, वैसी जो कास्ट होती है या ट्राइब्स होती है ना, उन्हें हम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द प्रधान और द सरपंच। सरपंच का दूसरा नाम प्रधान भी कहते हैं, ग्राम प्रधान भी कहते हैं। ओके, द अप प्रधान मतलब कि जो हम कहते हैं कि डेप्यूटी सरपंच जो होता है, जिस डेप्यूटी वर्ड हमने दे दिया है डेप्यूटी सरपंच। सो अप प्रधान टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द विलेज इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच। तो
जो सरपंच होता है उसके एब्सेंस में जो डेप्यूटी सरपंच होता है ना, वो सारा काम करता है। नाउ न्याय पंचायत। अब ये न्याय पंचायत क्या है, लेट्स सी इट। अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 अगस्त 2011। प्रेस रिलीज मतलब किसने ऑफिशियली उन्होंने सब प्रेस रिलीज जाहिर किया था 26 अगस्त 2011 को। What is that in press release? Government proposes to establish न्याय पंचायत। Government proposes to establish न्याय पंचायत in every ग्राम पंचायत और a cluster of ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत या क्लस्टर ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत वो इस्टेब्लिश करने की प्रपोज कर रहे हैं। फॉर प्रोवाइडिंग अ सिस्टम ऑफ फेयर एंड स्पीडी जस्टिस, जल्दी और बहुत ही फेयर जस्टिस हो इसलिए। बोथ सिविल एंड क्रिमिनल टू दी सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप्स आउटसाइड द फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम। द न्याय पंचायत्स आर प्रपोज टू बी कंस्टिट्यूट थ्रू द इलेक्शन ऑफ द न्याय पंचेस बाय पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया ऑफ टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ द न्याय पंचायत एक्सटेंड्स। जो फॉर्मल हमारी जो न्याय सिस्टम है, मतलब कि जो हमारी लॉ सिस्टम है, उससे थोड़ा हम कहेंगे कि विपरीत कि जो न्याय पंचायत होती है उसमें न्याय पंच होते हैं, और ये न्याय पंच हैं वो जल्दी से बहुत ही क्विक, बहुत ही हम कहेंगे कि तुरंत डिसीजन लेते हैं। और ये जो न्याय पंचेस होते हैं ना, वो रिसाइडिंग होते हैं, मतलब कि आजू बाजू के विलेज के ही वो रहने वाले होते हैं। और जो न्याय पंचायत जहाँ तक उनका हम कह सकते हैं जुरिडिक्शन लगता है, मतलब कि वहाँ पे उनकी अथॉरिटी है, पावर है, उनके ऊपर वो हम कह सकते हैं कि न्याय पंचायत डिसीजंस लेते हैं। Provisions are proposed for the reservation for women, scheduled caste and scheduled tribes to ensure their representation in the न्याय पंचायत। न्याय पंचायत में भी वुमेन का, scheduled ट्राइब का और scheduled कास्ट का भी रिजर्वेशन है, मतलब उनके मेंबर का रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से सारे तरह के वहाँ पे लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्याय पंचायत में। नेक्स्ट वन इज The draft bill defines the civil, criminal and additional jurisdiction of the न्याय पंचायत। जो ड्राफ्ट होता है ना, वो डिफाइन करता है कि क्या क्या है उसके अंदर। इन द ड्राफ्ट बिल, ओके, conciliation is the process as primary means of dispute resolution. Further, न्याय सहायक, remember न्याय सहायक, who will assist the न्याय पंचायत in performing their function of dispute resolution हैविंग बीन प्रपोज्ड। जो प्रपोज किया है, जो डिस्प्यूट्स है उसके अंदर जो न्याय सहायक होते हैं वो हेल्प करते हैं किसको, न्याय पंचायत को। वो अपने व्यूज देते हैं और अपने हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का जजमेंट भी देते हैं। न्याय पंचायत आर प्रपोज्ड एज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज। न्याय पंचायत है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, ओके, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत से अलग है। जैसे मैंने अभी बात की कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया कि न्याय पंचायत सारे ग्राम पंचायत या क्लस्टर ऑफ ग्राम पंचायत में होने चाहिए, मतलब कि वो ग्राम पंचायत से अलग है न्याय पंचायत। द ड्राफ्ट न्याय पंचायत बिल वाज सर्कुलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, सेवरल अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बेस्ड ऑन कमेंट्स रिसीव्ड, सम मॉडिफिकेशंस वेर मेड इन द ड्राफ्ट बिल। सारे जो मिनिस्ट्रीज है, सारे डिपार्टमेंट्स है, सारे स्टेट्स, टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, वो सब में जो उन्होंने कमेंट्स की जो इस बिल के ऊपर ड्राफ्ट बिल के ऊपर, उसके ऊपर मॉडिफिकेशन हुआ बाद में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्याय पंचायत। हमारे कंट्री में न्याय पंचायत जो थी उसके ऊपर जो हम प्रोसेस किया था, उन्होंने जो ड्राफ्ट बिल बनाया था गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से ये उसकी डिटेल है। सो व्हाट इज कॉल्ड न्याय पंचायत। ओके, यू शुड come to know that about the yes, न्याय पंचायत is a kind of separate independent okay dispute resolution bodies। जो अलग अलग डिस्प्यूट्स होती हैं, जो मतभेद होते हैं, जो विवाद होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए अलग से सेपरेट बॉडी है और ये इंडिपेंडेंट है। प्लीज रिमेंबर द वर्ड सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट। किसी के अंदर नहीं आती है, किसी के अंडर नहीं आती है, वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी जिसे कहते हैं, एट प्लीज रिमेंबर विलेज लेवल। पंचायत समितिज एट द इंटरमीडिएट लेवल, जिसे हम तालुकास लेवल की जो कहते हैं ना बॉडी, उसे कहते हैं पंचायत समिति, या फिर हम कहेंगे कि ब्लॉक ओके समिति। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय द ग्राम पंचायत अलोन। ग्राम पंचायत से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते जो हम तालुका लेवल के कहते हैं, इसलिए सो पंचायत मीन्स ब्लॉक समितिज हैव बीन कंस्टिट्यूटेड।
जो पंचायत है वो बनाई गई है तालुकास की। सेवरल विलेजेस आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ ब्लॉक विथ अ गवर्निंग बॉडी कॉल्ड द पंचायत समिति। जो ग्रुप ऑफ बहुत सारे विलेजेस को जो बनाए जाते हैं उसे हम तालुका कहते हैं, ओके, इसे ब्लॉक भी कहते हैं। तो उसके लिए पंचायत समिति बनाई जाती है। तो पंचायत समिति यूजुअली लुक्स आफ्टर नीड्स ऑफ मेनी विलेजेस। अब जो ग्रुप ऑफ विलेजेस बने हैं ना, उसकी बहुत सारी जो नीड्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, उस सब के लिए पंचायत समिति बनाई गई और वही वो फंक्शन करती है उसके ऊपर। कॉम्पोजिशन मतलब कि कैसे बनती है, किस किस मेंबर से वो बनी हुई है। कॉम्पोजिशन मतलब कि जो पंचायत समिति है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। द फॉलोइंग में फॉर्म द पंचायत समिति। ये जो नीचे हम लिस्ट दिए गए उस हिसाब से पंचायत समिति बनाई जाती है। सरपंच ऑफ ऑल ग्राम पंचायत, सारे ग्राम पंचायत के सारे सरपंच। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक। उस ब्लॉक के हिसाब के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं और एमएलए। याद रखना, एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में इलेक्ट होते हैं, लोकसभा इलेक्शन में, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो इलेक्ट होते हैं विधानसभा इलेक्शंस में। ये दो आपको जो थोड़े प्रॉब्लम करने वाले, कंफ्यूजन करने वाले जो वर्ड हैं वो दोनों याद रखना है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि जो लोकसभा में इलेक्शन में वो सिलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, मतलब कि जो हमारे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट बनाने में वो एमपी होते हैं। और जो स्टेट लेवल की जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है विधानसभा, ओके, उस इलेक्शन में इलेक्ट हुए उन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। क्लियर? देन व्हाट आर दी अदर्स? ओके, so these are the we can say the composition of the panchayat samiti. Then seats are reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes. 1/3 of the total seats are reserved for women. ये कॉमन रूल है scheduled caste के लिए, scheduled tribes के लिए, और हर जगह 1/3 of the population या फिर 1/3 of the जो सीट्स होती है उनमें से वुमेन का रिजर्वेशन होता है। The chairperson and vice chairperson are elected by the members of the block समिति। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों इलेक्ट किए जाते हैं ब्लॉक समिति से। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्लान्स ऑफ द पंचायत समिति। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ओके, वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है सारी इस प्लान का, जो पंचायत समिति की जो प्लान्स बनती है उसके लिए। दिस इज ऑल अबाउट दी ब्लॉक वी कैन से समितिज और वी कैन से दी पंचायत ओनली, ओके, पंचायत ओनली, ग्राम पंचायत नहीं, सिर्फ पंचायत जो तालुकास लेवल की होती है जिसे हम तहसील भी कहते हैं दूसरे वर्ड में। नेक्स्ट वन इज जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द जिला परिषद फॉर्म्स द टॉप टायर इन द पंचायती राज सिस्टम। इट फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, ग्रुप ऑफ ग्राम्स के लिए जो तालुका होता है उनके लिए हम कहेंगे कि यस पंचायत समिति ओनली और ब्लॉक समिति। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए होती है जिला परिषद। द जिला परिषद फॉर्म्स द टॉप टायर इन द पंचायत राज सिस्टम। It functions at the district level. Yes. Generally, it functions for a period of 5 years. Generally, जो जिला परिषद होती है वो 5 years के लिए फंक्शन करती है। ओके, कॉम्पोजिशन ना, उसके अंदर अब कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कैसे जिला परिषद बनती है। द जिला परिषद इज ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी। द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्ले अ रोल इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द परिषद आर द टॉप 2 ऑफिस बियरर्स। मतलब ऑफिस के जो होद्देदार होते हैं ऑफिस के, वो ही होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। जो जिला परिषद के मेंबर्स है वही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली जो 2 ऑफिस बियरर होते हैं, जो टॉप 2 मतलब पहले दो जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स होते हैं वही प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। उसके अंदर इस प्रकार के मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत समितिस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमपीज एंड एमएलएस, मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। फिर से वापस वहीं पे आए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, शेड्यूल्ड कास्ट के और वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं, मेंबर्स। प्लीज रिमेंबर मेंबर्स। नाउ फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखे उनके फंक्शंस क्या हैं। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर
कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड्स, सबसे पहला जो रोड ही होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक सिटी को, स्मॉल विलेज को बिग विलेज से, बिग विलेज को टाउन से और टाउन को सिटी से, ओके, सिटीज़ को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। सो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द विलेज रोड्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज टैंक्स एंड वेल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी की, जो हम कह सकते हैं कि जो टैंक्स होते हैं गांव में एक और टंकी होती है बहुत बड़ी, और वेल्स जो कुएं होते हैं उनकी। प्रोविजंस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबसे ऊपर ये आता है ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रोविज़न, मतलब कि जो उन्हें फैसिलिटी देनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर की, वो सबसे पहली हमारी नीड होती है, ओके, एसेंशियल नीड जो होती है उसमें से सबसे पहला आता है ड्रिंकिंग वाटर। प्रोविज़न ऑफ लाइट ऑन रोड्स, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जो हम कहते हैं ना कि सबसे पहला जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट कोई डिस्पेंसरी होनी चाहिए वो, और सैनिटेशन के लिए जो पूरी विलेज होता है वो क्लीन रहे उसके लिए। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, अगर कोई बड़ा हम कहेंगे कि विलेज है या फिर टाउन है तो वहाँ पे हॉस्पिटल होनी चाहिए, बड़ी सी अच्छी सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फेयर्स एंड मार्केट्स, जो फेयर होते हैं, मेले होते हैं या मार्केट होते हैं, उसका मैनेजमेंट जो विलेज लेवल में ज़्यादा होते हैं, फेयर्स मतलब जो मेला होता है वो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, ओके, ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन करना, कि रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन करना। देन यस, सो अ रिजर्वायर बीइंग बिल्ट बाय अ ग्राम पंचायत, रिजर्वायर मतलब कि जो पानी जहाँ पे स्टोर होता है ना उसे रिजर्वायर कहते हैं, ओके। तो ये सारे जो काम हैं वो ग्राम पंचायत के जो हमारे अलग अलग पंचायती राज सिस्टम के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं ये उनका है, ये वो रिस्पॉन्सिबल हैं वो सारे काम के लिए, ओके। एट ग्राम पंचायत again, yes, please remember the sarpanch also. At the, we can say, taluka level, the block samitis and panchayats only panchayat samitis is also called, and district level जिला परिषद also, president and vice president भी, ये सब के सब जो सारे members होते हैं वो responsible होते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब के डेवलपमेंट के लिए। आफ्टर दैट वुमेन एंड पंचायत, अब वुमेन और पंचायत में जो हमने रिजर्वेशन देखी वो क्या है, लेट्स सी दैट वन। वुमेन इन इंडिया हैव बीन ग्रांटेड मोर रिप्रेजेंटेशन इन ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में उन्हें ज़्यादा हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन करते हुए देखा है सिंस द 1990s, ओके, 1990s में उससे हमने उन्हें ये रिप्रेजेंटेशन करते हुए देखा है ग्राम पंचायत में। इन 1993 इट वॉज डिसाइडेड दैट, पहले 1993 के पहले ये हम कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन नहीं था किसी भी रिजर्वेशन का वुमेन के लिए। In 1993, it was decided that 33% seats should be reserved for women in पंचायती राज institutions. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जितनी भी ये 3 टायर सिस्टम हैं उन सब में जितनी भी सीट्स होगी उसकी 33% सीट्स हम कहेंगे कि वुमेन के लिए रिजर्व होगी और वुमेन कैंडिडेट्स ही वहाँ पे आएंगी। मैनी विलेजेस हैव बीन, ओके, हैव अ वुमन एज अ सरपंच, ओके, आज भी अभी भी बहुत सारी जगह पे वुमन एज अ सरपंच वर्क कर रही है। प्रेसिडेंट की जैसे भी हम कहेंगे कि जिला परिषद में भी वुमेन्स होती है, म्यूनिसिपालिटीज़ में, अर्बन में, यस, अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी वुमेन होती है, वहाँ पे भी 33% का रिजर्वेशन कोटा रहेगा ही। द पंचायती राज सिस्टम्स हैज़ हेल्प इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन विलेजेस, जो सबसे नीचे लेवल का मतलब कि सबसे ग्रास रूट लेवल का जहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ से वुमेन को एम्पावरमेंट मिली हुई है इस पंचायती राज सिस्टम के 33% ऑफ वुमेन रिजर्वेशन से। आगे जाके वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में वही रिजर्वेशन स्टे हुआ है, मतलब कि रहा है, और आगे जाके स्टेट असेंबलीज और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हम कहेंगे कि जो लोकसभा असेंबलीज हैं उसमें भी वुमेन रिजर्वेशन है। तो विलेज से लेके हम कहेंगे कि कंट्री तक गवर्नमेंट बनाने में वुमेन का बहुत बड़ा की रोल है, की फैक्टर है, प्लीज़ रिमेंबर। और ये सब हो सकता है अगर वुमेन रिजर्वेशन दिया गया है तो अपनी अपनी सिस्टम्स में। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज के बीच में रिलेशन कैसा है और कैसे वो दोनों वर्क करते हैं एक दूसरे के कोलैबोरेशन में। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन accorded the power to pass laws for constituting different institution of पंचायती राज। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पावर पास की हुई है, दी नहीं है, पास की हुई है, किसको, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं पंचायती राज के उस हिसाब से। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स टू कैरी आउट पंचायत प्लान्स फॉर विलेज एम्पावरमेंट।
अलग अलग ग्रांट नाम के जो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम्स होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राम पंचायत को 500 करोड़ की ग्रांट दी है रोड्स की और टैंक की और वेल्स की रिपेयर के लिए, या फिर हम कहेंगे डेवलपमेंट के लिए। तो ग्रांट जो शब्द है ना, वो ग्रांट शब्द से हम कहेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट है ये सारी पंचायती राज सिस्टम में से अर्बन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को ग्रांट करती है। ग्रांट का मतलब कि पैसे देना, जो फाइनेंशियल हेल्प होती है सबसे मेन वो करती है। The state government keeps a strict watch on the working of Panchayati Raj institution by appointing a secretary. Please remember कि उनकी ग्रांट्स का सही से यूज़ हो रहा है, वो कंज्यूम हो रही हैं। पंचायती राज सिस्टम है मतलब कि जो सारी जो उनकी इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से वर्क कर रही है, तो उसके लिए वॉच रखने के लिए, स्ट्रिक्ट वॉच रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सारे इंस्टीट्यूशन में एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है। Who maintains a record of the work done by this institution? ये सेक्रेटरी पूरा रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन सा वर्क किस किस इंस्टीट्यूशन से किया गया है। ये सारा रिपोर्ट होता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अगर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट वॉच नहीं होती तो जो पंचायती राज सिस्टम है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जो मनमानी कहते हैं ना, मनमानी, जो हम कहेंगे एक प्रकार की डिक्टेटरशिप भी हो सकती है कभी कभी। सो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन दिस काइंड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नाउ यस, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि काइंड ऑफ डिफरेंट मिशंस एंड वी कैन से प्रोग्राम्स आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। One of them is Swachh Bharat Abhiyan or Swachh Bharat Mission is a nation-wide campaign for cleanliness spearheaded by the government of India, especially under the BJP's government, जिसे हम PM मोदी की जो हम गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे पहला जो बड़ा जो अभियान चलाया, कैंपेन चलाया, वो ये था स्वच्छ भारत अभियान। The mission was launched on 2nd October 2014. This mission is an apt example of a government campaign that aims to involve local, rural and urban communities at grassroots level. हर जगह पे जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ है, मतलब कि लोकल जो गवर्नमेंट है उसमें रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके उन्होंने, हम कह सकते हैं कि ये अभियान सबको साथ में करवाया, इस अभियान में सबको ज्वाइन करवाया। इन रूरल एरियाज the main aim of the abhiyan is to promote cleanliness and hygiene through elimination of open defecation and a community managed waste management system। जो ओपन में हम कूड़ा डालते थे, कूड़ादान या कचरा जो डालते थे, वो सबको साफ करने के लिए सबसे स्पेशली रूरल एरिया से ही ये स्टार्ट कर सकते हैं अभियान। तो वहाँ पे जो क्लीनिनेस के उस वक्त के 2014 में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल से रिपोर्टिंग होती थी, फोटोग्राफ्स होते थे और रिकॉर्डिंग भी होती थी कि बहुत सारे MPs और MLAs, प्लीज़ रिमेंबर MPs, MLAs, CMs तक और हमारे PM थे, उन सब ने झाड़ू लगाया था रोड के ऊपर। ऐसे कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए वो खुद झाड़ू लगाते थे, वो खुद क्लीन करते थे। ऐसे अलग अलग पिक्चर्स, वीडियोस हम कह सकते कि TV न्यूज़ चैनल्स के द्वारा मार्फत होके उन्होंने प्रमोट किया था इस अभियान को। And this abhiyan, or we can say this mission, got the great one of the greatest success at that time. So yes, whereas in the urban areas the same aim is fulfilled by stressing on construction then of public toilets, construction of public toilets, door-to-door waste collection and conservation of waste into energy and compost। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूँ कि गुजरात में भी हमारे जो BJP की जो गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने भी ये कैंपेन को बहुत ही ज़ोर शोर से प्रमोट किया था। तो उसमें पब्लिक टॉयलेट्स भी बनाए थे बहुत सारे उस वक्त भी। देन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, जो पहले इतनी हम कह सकते कि वाइड हम पॉसिबिलिटीज़ में नहीं होता था कि घर पे आपके आके म्यूनसिपैलिटी का या फिर हम कहेंगे ग्राम पंचायत से कुछ लोग आएंगे और आपका वेस्ट कलेक्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा एग्जांपल था वेस्ट कलेक्ट करने का, डोर टू डोर का। ट्रैक्टर्स आते हैं, अगर हम एग्जांपल देते हैं हमारी ही लोकेलिटी में, गुजरात में जब हम रहते हैं तो हमारी लोकेलिटी में एक ट्रैक्टर म्यूनसिपैलिटी से द्वारा भेजा जाता है आफ्टर 2 days और 3 days, और वो हमारा सारा जो वेस्ट है वो कलेक्ट करता है डोर टू डोर, घर के आगे आगे ही।
तो ये जो डोर जो हम जो पहले जो वेस्ट डालते थे हमारे घर के आजू बाजू, वो अब बंद हो गए हैं। द स्वच्छ भारत मिशन हैज़ रिसीव्ड ट्रिमेंडस सपोर्ट of the people from all across the country. For example, the Akshar School in Guwahati, Assam asked students to bring plastic waste as fees. Great one. In Bengaluru, the Composing Learning Center, Swachh Ghar Kalika Kendra, has been established as a live learning center for all kids of composing. Composing कैसे होती है वो दिखाने के लिए, उन सबको लाइव दिखाने के लिए वो ओपन किया गया था। Everyone can thus learn different methods of composing and practice the same in day-to-day life. कैसे कंपोजिंग होती है, प्लास्टिक की, ग्लास की या मेटल की, वो यहाँ पे सिखाया जाता था। A homemaker in Nasik, yes, a homemaker in Nasik is making handcrafted dolls using newspaper waste. You too can contribute in your way to this national mission. तो हम भी इस अभियान में, जो स्वच्छ भारत अभियान जिसे कहते हैं, उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कि वेस्ट ना फैला के, ओके, ये वेस्ट को यहाँ वहाँ ना डालें। उसके बाद भी हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने भी, या फिर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी थी। उसमें जो 2 तरह के बीन्स भी आए थे, ओके, ब्लू बीन्स एंड ग्रीन बीन्स, वेट वेस्ट के लिए और ड्राई वेस्ट के लिए। ओके, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है वो उसके लिए ग्रीन, और फिर जो ड्राई होता है उसके लिए ब्लू बीन्स। ओके, so there are many different programs and abhiyans, okay, launched by the governments for the cleanliness at local self level, at state level and at central level also. So students, I hope you understand everything about the rural administration, okay, the panchayati, 3-tier panchayati raj system. Okay, we will meet in the next session with the urban administration. Okay, for this session or for this part, okay, thank you, goodbye.